Hi guys, in this video I am going to compare jobs in the two biggies in the financial regulation sector of India, that is RBI and SEBI. And the jobs that we would be comparing would be RBI grade B versus SEBI grade A. Now this is going to be a very tough task for me, but I'll try my best. I'll try to explain it from different angles. The final decision will be yours. Now, to start with, let us try to understand that both RBI and SEBI are regulatory bodies in their respective sectors. The jobs in these bodies are highly respected, highly paid, job satisfaction is very high, and both of them are autonomous government institutions, which means that you have a job stability. 60 साल तक आपको कोई हिला नहीं सकता है. अब एक चीज जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर आरबीआई is a very big entity and it is regulating almost about 34,000 financial entities, तो सेबी भी कम नहीं है. The capital markets which SEBI is heading, which SEBI is regulating, as per one study by 2047, the size of that would be US dollar 60 trillion. Can you imagine that? Can you imagine that number? So both these are behemoths, biggies in their own ways. But अब क्वेश्चन ये आता है जो जर्नली लोग पूछते हैं, सर विच वन इज बेटर टू ज्वाइन, कौन सा अच्छा है अगर एक ज्वाइन करना पड़े या एक ज्वाइन करना है तो कौन सा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी हमारे लिए. सो the most common thing which I find is that when people try to answer these kind of questions by themselves, वो ज़्यादातर salary, promotions, इन चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं rather than कि बाकी चीज़ें कैसी हैं जो कि बहुत important है. For example, I think the most important factor or criteria for you to decide that which one is better is कि what's your interest area. Now both RBI and SEBI work in different areas. RBI is the Central Bank of India, which regulates the entire banking sector. You will get to work in the areas like monetary policy, forex management, issuer of currency, bankers to banks, then debt management, financial inclusion, consumer protection. ये सारे एरियाज हैं जो अब आरबीआई में काम करेंगे. वेयर सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट. अगर लेमैन लैंग्वेज में बोला जाए, स्टॉक्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, डेट, म्यूचुअल फंड्स, अगर आपको इन सबसे किक मिलती है तो सेबी इज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यू टू ज्वाइन. सो why I am telling you this is because this is very important. Once you join an organization, you would be working in that organization for the next 30-35 years. So it's very important that if you have an option, you join one where no it is aligning with your interest area. बाकी एरियाज पे भी डिस्कस कर लेते हैं. हम जितना भी कह लें, अल्टीमेटली आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल विल मेक डिसीजंस ऑन फैक्टर्स लाइक सैलरी एंड ग्रोथ. तो लेवल की बात करें, सबसे पहला डिफरेंस आता है जो आरबीआई ग्रेड बी है वो एक ग्रेड बी जॉब है विच इज अ हायर लेवल देन ग्रेड ए जॉब विच यू गेट एट सेबी. बट अगर आप कुछ काम देखें या एक एक ओहदा देखें, हिंदी में ओहदा बोलते हैं जिसको, देन सेबी ग्रेड ए को भी काइंड ऑफ सेम रिस्पेक्ट दी जाती है, सेम काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल वर्क दिया जाता है जो कि एक आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स को मिलता है. बट हैविंग सेड दैट, ग्रेड बी इज ऑब्वियसली अ हायर ग्रेड देन ग्रेड ए विच यू वुड बी गेटिंग इन सेबी. सैलरी की बात करें, सो इन लाइन विद योर ग्रेड, RBI is a higher grade, RBI grade B, you would be getting a higher salary in a range of 25 to 30 lakhs in RBI, whereas in SEBI it would be in a range of around 20 to 25 lakhs. तो यहाँ पे मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. एंड ओवर द पीरियड यार, अगर आपकी 55 है और किसी की 58 या 60 है, से 7 years 10 years डाउन द लाइन, आई थिंक दैट इज नॉट गोइंग टू मेक दैट मच डिफरेंस. तो सिर्फ सैलरी मत देखें, मैं शुरू से यही कहने की आपको कोशिश कर रहा हूँ. पोस्टिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है या ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग दे वांट टू लिव क्लोजर टू द होम. तो आरबीआई की बात करें, सो दे हैव ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया, मेनली इन द स्टेट कैपिटल्स, सो यू विल गेट पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स इन द मेट्रो सिटीज. और यहाँ पे ट्रांसफर्स एक रेगुलर प्रोसेस है, काफी ट्रांसफर्स होती रहती हैं. वेयर एज इनसे भी मेनली द ऑफिस स्टाफ इज इन मुंबई. Majority of the work is carried out of Mumbai, though there is office staff in Delhi, Kolkata, Chennai and Ahmedabad. यहाँ पे भी रीजनल ऑफिसेज हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टाफ इज इन मुंबई. और अगर आप मुंबई में हैं, वहाँ से ट्रांसफर होने के, रेगुलर ट्रांसफर होने के चांसेस बहुत कम हैं. सो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं दैट
ड्यूरिंग योर एंटायर टेन्योर मोस्ट ऑफ द टाइम यू वुड बी इन मुंबई। तो सेबी में ये एक फैक्टर शायद फेवर में है, अगर आप मुंबई में सेटल होना चाहते हैं तो वहां पे आप आसानी से हो सकते हैं, आपको पूरा ऑप्शन मिलेगा कि हम मुंबई छोड़ के ना जाएं। वेयर एज इन आरबीआई आपको थोड़ा ट्रांसफर्स होती रहेंगी आपकी, और लेकिन पोस्टिंग्स आपको यहाँ पे भी मेट्रो सिटीज में ही मिलेंगी। नेक्स्ट आता है सोशल इंप्रेशन। वेन एवर वी ज्वाइन एनी जॉब वी ऑल्सो डू कंसिडर दैट हाउ दैट जॉब इज लुक्ड अपॉन इन द सोसाइटी, उसकी रिस्पेक्ट है या नहीं। तो आरबीआई रियली स्कोर्स हाई इन टर्म्स ऑफ सोशल इंप्रेशन एज कंपेयर टू सेबी। तो यहाँ पे ये नहीं है कि आरबीआई ज्यादा अच्छा है सेबी से। नाउ सोशल इंप्रेशन कैसे पड़ता है दोस्तों? सोशल इंप्रेशन इज बेसिकली द परसेप्शन ऑफ द पीपल टुवर्ड्स दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो आरबीआई का क्या है, दैट हैंडल्स एरियाज लाइक नो इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ इंटरेस्ट रेट, और व्हेन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज और डिक्रीज होता है, लोन इम्पैक्ट्स होते हैं, एफडीज इम्पैक्ट होती हैं, तो सारे लोग इम्पैक्ट होते हैं। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट आरबीआई। RBI issues currency, RBI issues or prints notes. Therefore, also people know about RBI. A common man in a rural area might also know about RBI. Whereas SEBI is mainly related to securities market, और इंडिया में securities market का penetration बहुत कम है. At the end of 2020, it was hardly 5%. So that is very less. ठीक है, तो आई थिंक सेबी इज नॉट वेल नोन, दो इट इज इक्वली गुड इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग एज कंपेयर टू आरबीआई। सो सोशल इंप्रेशन में आरबीआई डेफिनेटली स्कोर्स हायर, बट आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसा कि मैंने बोला, इंडियन कैपिटल मार्केट्स इज बाउंड टू एक्सपैंड टू $60 ट्रिलियंस बाय 2045। तो काफी लोग इसमें सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, अवेयरनेस बढ़ेगी, सो मे बी बाय दैट टाइम सेबी का सोशल इंप्रेशन भी उतना हाई हो जाए, बट शायद तब तक तो आप रिटायरमेंट तक पहुंच जाएंगे। Now coming to promotions in both these organizations are time bound and performance based also. आपके मैनेजर के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है आपका अप्रेजल कैसे होता है। बट आई थिंक नाउ इफ वी कंपेयर बोथ आरबीआई एंड सेबी, आरबीआई ग्रेड बी एंड सेबी ग्रेड ए, नाउ सेबी इज अ वेरी ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां पे अभी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ कम है। आरबीआई में आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 12 to 15K, इफ आई एम करेक्ट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। सेबी में इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 1K to 1.5K, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आरबीआई इज ऑलमोस्ट लाइक 10 times द साइज ऑफ सेबी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज। तो सेबी अभी एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, बट इट कैन गिव यू गुड ग्रोथ इन फ्यूचर। अगर कैपिटल मार्केट्स ग्रो होती हैं, ऑब्वियसली दे विल हायर मोर पीपल, ज़्यादा प्रमोशन के एवेन्यूज होंगे, ज़्यादा ग्रोथ के एवेन्यूज होंगे। सो वो आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ सकता है फ्यूचर में क्या होगा, बट इन माय ओपिनियन इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ और प्रमोशन, सेबी इज अ बेटर बिट देन आरबीआई। Now coming to diversity of profile, here also I think RBI Grade B offers you more exposure. बहुत सारे areas हैं, financial inclusion, consumer protection, monetary policy, debt management, forex management, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। रिसर्च एक अलग है। वेयर इन सेबी ग्रेड इट इज मेनली रिलेटेड टू सिक्योरिटीज, तो वहां पे भी आपको एक्सपोजर मिलेगा, डेट सिक्योरिटीज, स्टॉक्स, हाइब्रिड सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स, रिकवरी, तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। बट आई थिंक कंपेयर किया जाए तो आरबीआई ग्रेड बी में जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो डाइवर्सिटी है प्रोफाइल्स की, वो थोड़ी सेबी से ज़्यादा है। सो डाइवर्सिटी ऑफ प्रोफाइल आई वुड से over a period of time you will realize is more in RBI grade B than in SEBI. Last बात करते हैं exit opportunities की. Money is an important factor in life, so many people also think that down the line, if I want to switch to the private sector, say after 10 to 15 years, what are the exit opportunities? तो वहाँ पे RBI और SEBI, I think they are both good. People who have worked as RBI grade B officers or at higher grades, say grade C or grade D, they are in huge demand in the private sector for licensing and all. Private banks like HDFC, ICICI, I think वो आपको मुंह मांगा पैसा देते हैं। SEBI grade A में भी, if you have good experience, there is huge demand for these people in big corporate houses which are dealing in securities again, जैसे HDFC Securities, ICICI Securities. तो there is no dearth of opportunities. दोनों में exit opportunities काफी अच्छी हैं, but I really doubt that no lot many people would leave RBI or SEBI after working for 5 to 10 years in these organizations. तो ये तो हमने ओवरऑल कंपैरिजन कर लिया, बट गाइस इंडिया में वन थिंग वी नीड टू रियलाइज, कंपटीशन बहुत है एंड समटाइम्स वी आर लाइक बेगर्स,
कि कुछ भी मिल जाए, कोई भी जॉब मिल जाए, एंड beggars are not choosers. So in that context I would say that please do self analysis. अगर आप बहुत अच्छे हैं, अगर आपको लगता है आप दोनों जॉब क्रैक कर सकते हैं, obviously देन यू नीड टू मेक अ डिसीजन. अगर आप दोनों क्लियर करते हैं या एक के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं कि विच वन यू शुड चूज. बट वी ऑलवेज हैव सम कॉन्स्ट्रेंट्स इन टर्म्स ऑफ आवर एबिलिटीज. तो यहाँ पे मैं बोलूंगा you need to do self analysis. And specifically the problem I've seen with some people while they're preparing for RBI grade B is that their quant, reasoning, current affairs and English is not that good, and therefore they are not able to manage to clear RBI grade B. Current affairs is a main area because here there is a lot of cramming to be done, which many people find tough. So इससे अगर आपको बचना है, दिस इज योर वीक एरिया, देन प्लीज गो टू सेबी ग्रेड ए, बिकॉज यहाँ पे कोई करंट अफेयर्स नहीं है, क्वांट रीजनिंग का ज़्यादा वेटेज नहीं है, इट जस्ट क्वालिफाइंग. तो सेबी ग्रेड में इट्स ऑल अबाउट लॉजिकल सब्जेक्ट्स जो भी आपके सिलेबस में हैं, अंडरस्टैंड कीजिए और पेपर में जाइए, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं. सो प्लीज डू कंसिडर ऑल दिस. इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू आर गेटिंग एट आरबीआई और सेबी, इट्स ऑल्सो अबाउट दैट नो वेयर यू कैन गेट सेलेक्टेड. दैट्स ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड. सो आई होप गाइस कि आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी. इन केस यू आर कंफ्यूज के आरबीआई सेबी में से किसकी तैयारी करें, किसको छोड़ें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी. इन केस यू स्टिल हैव एनी डाउट, प्लीज ईमेल अस at hello@edutap.co.in. We will definitely try to help you out. Bye bye. Have a nice day.